Welcome to my class, students. We are doing English first flight and this is the chapter Baker from Goa. This is chapter 7 और हम अभी बोर्ड क्वेश्चन आंसर करेंगे. रिमेम्बर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. Now, extract based questions, 3 marks के. Question 1. Wickets would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. But we would not give up. We would climb a bench or the parapet and peep into the basket somehow. I can still recall the typical fragrance of those loaves. Loaves for the elders and the bangles for the children. तो कैसे बच्चों को धक्का देके अरे दूर हटो अभी जाओ, और जो सर्वेंट्स है वो कलेक्ट करते थे, और लेकिन बच्चे जो थे वो बेंच पे चढ़ के पैपेट पे चढ़ के बास्केट के अंदर देखा करते थे, और जो फ्रेग्रेंस थी वो अभी भी उनको याद है. So who are we in the extract? We in the extract refers to the narrator and his friends. Why were the children pushed aside? The kids were pushed aside so that the braids can be delivered to the servant. तो उनको हटा के कि सर्वेंट्स को ब्रेड्स दिया जा सके, बच्चों को दूर किया जाता था. Which word phrase in the extract means the same as an expression of disapproval or scolding? तो बच्चों को कब डांट पड़ती थी, कौन से वर्ड से पता चलता है कि डिसअप्रूवल मतलब बच्चों को अलाउ नहीं किया जाता था और यहाँ उनको डांटा जाता था. द वर्ड रिब्यूक फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट मीन्स एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल या स्कॉलिंग. तो रिब्यूक जब बच्चे बहुत तंग करते हैं तो कभी कभी रिब्यूक किया जाता है उनको, तो ये रिब्यूक है, ये एक तरह से डिसअप्रूवल है या स्कॉलिंग है. What was there in the basket? तो बास्केट में ऐसा क्या है कि जो बच्चे इतने उतावले होते हैं. There were some loaves for the elders and some bangles for the children. तो elders के लिए loaves हुआ करता था बास्केट में, और बच्चों के लिए वो bangles हुआ करते थे, bread bangles. Now, the baker usually collected his bills at the end of the month. Monthly accounts used to be recorded on some wall in pencil. Baking was indeed a profitable profession in the old days. The baker and his family never starved. He, his family and his servants always lived happy and prosperous. The plum physic was an open testimony to this. Even today, any person with jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. तो ये CBSE 2016 में आया है. Now, where did the baker record his account? तो कहाँ वो अपने accounts record करते हैं? The baker recorded his accounts on some wall in pencil. Why did the baker in his family never starve? तो क्यों वो भूखे कभी नहीं रहे? The baker and his family never starved because baking was a profitable profession. क्योंकि जो baking था वो बहुत ही profitable profession था, इसमें काफी ज्यादा profit होता था. Which work in the extract is synonym of build? तो build का कौन सा word synonym है? Physic from the extract is the synonym of build. How can a baker be identified in Goa? गोवा में कैसे identify करते हैं? Any person with a jackfruit-like physical appearance is easily identified to a baker as their plump physique is an open testimony of their happiness and prosperity. तो जो भी जैक फ्रूट अपीयरेंस का इंसान रहता है उसको लोग इजीली कहते हैं ये बेकर ही होगा, क्योंकि उनका जो प्लम फिजिक है वो ओपन टेस्टिमनी ऑफ देयर हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी है, कि प्लम फिजिक से पता चलता है कि वो बहुत प्रॉस्पर है और बहुत ही हैप्पी है. दिस इज योर प्लम्प. एल इज हियर, राइट? So this word is plump. You will have to add plump. Here it is written plump, plump physic. Now, what is the importance of braids for the Goa, or why was the baker's furnace essential in traditional Goa village? CBSE 2010 में आया है कि जो ब्रेड की क्या इम्पोर्टेंस है गोवा फैमिलीज में, और ट्रेडिशनल विलेज में अभी भी बेकर्स का फर्नेस क्यों जरूरी है. तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रेड्स आर इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग द डिफरेंट ओकेजन्स. तो गोवा के विलेजेस में हर डिफरेंट ओकेजन्स पे डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेड्स की जरूरत होती है. बॉलिनहास हैड टू बी प्रिपेयर ड्यूरिंग क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स. जो बॉलिनहास या बोल है उसको हम लोग क्रिसमस में वहाँ प्रिपेयर किया जाता है और दूसरे फेस्टिवल्स में प्रिपेयर किया जाता है. The mothers used to prepare sandwiches on the occasion of their daughter's engagement. बेटी का अगर एंगेजमेंट है तो सैंडविचेस बनाना बहुत कंपलसरी है. सो द बेकर्स फर्नेस वाज एसेंशियल. तो बेकर्स का जो फर्नेस है बहुत ही जरूरी था.
After reading the story, A Baker from Goa, do you think our traditions, heritage, values and practices are the roots that nourish us? Why? Why not? तो ये 2015 में आया. देखो ये आपकी थॉट पूछ रहे हैं वो. That means your opinion. यहाँ लिखा हुआ है, जब आपने बेकर फ्रॉम गोवा स्टोरी पढ़ी तो आपको क्या लगता है हमारे जो ट्रेडिशंस है, हमारा जो हेरिटेज है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे जो वैल्यूज हैं और हमारे जो प्रैक्टिसेस हैं, हम जो प्रैक्टिस करते हैं, हम जो फेस्टिवल्स करते हैं, हमारे जो प्रैक्टिसेस हैं वो क्या हमारे रूट्स हैं जो हमें नरिश करते हैं, जो हमारा ग्रोथ करते हैं. वाई नॉट? अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों? A baker from Goa highlight the importance of the traditional practice of making breads. तो गोवा में जब हमने बेकर फ्रॉम गोवा जब पढ़ा तो उसने क्या हाईलाइट किया कि ब्रेड बनाने का वहाँ एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, एक ट्रेडिशनल नियम है, वहाँ ब्रेड बनाया जाता है फॉर एवरी ओकेजन एंड फेस्टिवल ऑफ द गोवा पीपल. गोवा के में रहने वाले लोगों के हर एक फेस्टिवल में और क्रिसमस के दौरान वहाँ ब्रेड मेकिंग की एक परंपरा है. दिस ट्रेडिशन कंटिन्यूज इवन टुडे, और ये अभी भी चलता आ रहा है. दिस शोज हाउ आवर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस कैन कीप अस टू अ पास्ट एंड हेरिटेज. तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है वो अभी तक अगर है तो इसका मतलब कि हमने उसको प्रिजर्व किया है, हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को, हमारे प्रैक्टिसेस को. ट्रेडिशनल वैल्यूज शेप आवर पर्सनैलिटी एंड ऑल्सो प्रोवाइड अस इमोशनल सपोर्ट. तो हमारे जो ट्रेडिशनल वैल्यूज है वो हमारी पर्सनैलिटी को भी शेप करते हैं, हमें एक आकार देते हैं और हमें एक इमोशनल सपोर्ट भी देते हैं. दे एनेबल अस टू फेस डिफिकल्ट सिचुएशन. और जो ट्रेडिशनल वैल्यूज है उसे अगर हम इंटैक्ट करके अपने आप में रखें तो वो हमारे डिफिकल्ट टाइम में हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं और हम डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस कर सकते हैं. एंड मेक्स अस मेंटली स्ट्रांग, और हमें मेंटली वो स्ट्रांग बनाते हैं. तो हमारे जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं उन्हें हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए. यही वो रूट हैं जो हमें नरिश करते हैं. ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन अ बिहेवियरल पैटर्न. तो हमारे व्यवहार का जो पैटर्न है उसमें भी ट्रेडिशनल वैल्यूज बहुत ज्यादा अपना इन्फ्लुएंस दिखाते हैं टुवर्ड्स द अदर पीपल इन सोसाइटी. समाज में जो दूसरे लोगों के प्रति हमारा जो व्यवहार है उस पर भी हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज की झलक मिलती है. तो इस तरह से ट्रेडिशनल जो हमारे प्रैक्टिसेस हैं, हमारे वैल्यूज हैं, उन सब से हमारी पहचान बनती है एंड दैट इज अवर रूट. सो आपने यहाँ क्या देखा? हमने यहाँ देखा कि बोर्ड के जितने भी क्वेश्चंस हैं, बेकर फ्रॉम गोवा एक छोटा सा आर्टिकल है, उसमें भी बोर्ड से इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं. इसका मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको ये लर्न करना है. पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसको अच्छे से आप समझ लो, क्योंकि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस कहीं से भी आते हैं. और जो मैंने लास्ट के जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, वहाँ आपके वैल्यूज वो जानना चाहते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पूरी की पूरी स्टोरी को आप पढ़ोगे तो उसके बाद जो भी आपके अंदर थॉट आता है वो प्लीज आप लिख के रखो, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड के एग्जाम में आपके थॉट्स की बहुत वैल्यू है. तो इन द सेम वे, और एक बात और, ये जो बेकर्स फ्रॉम गोवा है इसको आप एक समरी के रूप में अपने आप भी लिखो और हर एक इम्पॉर्टेंट जो इसके पॉइंट्स है उसे लिखो, सो दैट ये आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाए. और whenever you get any question related to the baker from Goa, you can write it well. So in the next class I will be with Kurg and then question answer of that chapter. Till then, have a good revision and please practice these board questions also. Thank you.